بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جو آپ کا سیرت کوئز کا جو مقابلہ ہونے والا ہے اس کے لیے ہم نے 40 سوال تیار کیے۔ 40 سوال ہے، زیادہ نہیں ہے اور بہت آسان ہے۔ تو وہ سوال کون سے ہیں وہ سوال آج ہم آپ کو بتانے والے۔ یہ اس کا زیروکس آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ 15-20 دن کے اندر یہ پورے سوال یاد کرنا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے 40 سوال لکھے والے ہیں۔ یہ 40 سوال میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی سوال کا جواب معلوم ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس کا جواب میں خود دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ حذیف کھڑے ہو جاؤ، اس میں جواب دو۔ خاندان قریش سے تھا۔ ماشاءاللہ، خاندان قریش، قبیلہ قریش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے اور کس خاندان سے تھا؟ قریش، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال رہے گا یاد کرنے کا تم کو، بیٹھو۔ جو سیرت کوئز کا جب مقابلہ ہوگا تو ایک طالب علم سے 10 سوال کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 10۔ 40 میں سے 10 سوال اس کو پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو، یہاں قبیلہ قریش سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ دوسرا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کتنے چچا اور کتنی پھوپھیاں تھی؟ لائبہ کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جواب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا سوال، جلدی جلدی لے رہے ہم، بعد میں یہ زیروکس تم کو دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا اور پھوپھیاں اسلام لے کر آئے؟ کتنے چچا اور پھوپھیاں اسلام لے کر آئے؟ 9 چچا ہے تو کتنے چچا نے اسلام لائے؟ اور 6 پھوپھیاں ہیں تو کتنے پھوپھیوں نے ایمان لے کر آئے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حمزہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا جواب صحیح ہے۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 9 چاچا، ریکارڈنگ ہو رہی نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں تھی، اس میں سے 2 چاچا نے کیا لے کر آئے؟ اسلام۔ کون سے حضرت، میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک پھوپھی حضرت صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ان تینوں نے ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ عرشیہ، پیر کو ہوئی، اس کے آگے بھی اور ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ اردو، پیر کے دن، ہاں رقیہ، شباش۔ 12 ربیع الاول، کون سا؟ 12 ربیع الاول، اور دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا، ماشاءاللہ۔ 5واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دودھ پلانے کے لیے کون سی عورت لے کر گئی تھی؟ مدینہ۔ نعت میں وہ سنے ہوں گے آپ نے، کھڑے رہو، نالائق کہیں گے، ہے کسی کو معلوم؟ اونٹنی پہ بیٹھا کر لے کر گئی تھی، ہے کسی کو معلوم؟ ساحل، ہاں چلو، شبیر، حذیف کھڑے رہو، ہاں شباش۔ کون؟ حلیمہ۔ حضرت داعی حلیمہ رضی اللہ عنہا کون لے کر گئی تھی دودھ پلانے کے لیے ہمارے نبی کو؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 مہینے کے تھے تو مدینہ سے وہ آئے تھے۔ حضرت داعی حلیمہ، مدینہ سے حضرت داعی حلیمہ آئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے کر گئی۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے سال رہے؟ دودھ پینے کی مدت کتنے سال رہے وہاں پر مدینہ میں؟ 4 سال، صحیح جواب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے داعی حلیمہ کے یہاں پر؟ 4 سال رہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کا سوال کہ شق صدر کسے کہتے ہیں؟
शक़ सदर, सदर बोलते सीने को, शक़ सदर किसे कहते हैं और ये कितनी मर्तबा हुआ है, किसी को मालूम नहीं? तो सुनो मैं जवाब दे देता। शक़ सदर कहते हैं फरिश्तों ने नबी अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया यानी फाड़ा, फरिश्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, उसको शक़ सदर कहते हैं। और ये कितने मर्तबा हुआ? 4 मर्तबा हुआ। कितनी मर्तबा हुआ? 4 मर्तबा हुआ। यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक फरिश्ते आते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाते थे, सीने को खोलते थे, जमजम के पानी से दिल को धोते थे और जैसे वैसे क्या कर देते थे, फिट कर देते थे। इधर आओ थोड़ा सा। तो शक़ सदर किसे कहते हैं? बोलो, कोई बोल सकता है? जो अभी मैंने बोला तो शक़ सदर। हुज़ैफ खड़े रहो, बोलो जल्दी से। तुम बैठो हुज़ैफ, अकरम खड़े रहो, टोपी सीधी पहनो जल्दी से। मोहसिन आप उठना नहीं। आप शक़ सदर जो अभी मैंने बोला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना फाड़ते, हाँ चाक करते और फरिश्ते वो उनके दिल को जमजम के पानी से धोकर और डालते, हाँ प्याग कर देते। कितने मर्तबा हुआ? 4। शाबाश। शक़ सदर समझ में आ गया ना? तुम्हारा को याद करने के 40 सवाल समझ में आ रहा? उसके बाद का सवाब, जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो हुजूर की कितनी उम्र थी? जब हमारे नबी के अम्मी का इंतकाल हुआ हजरत आमिना का, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? हाँ आयशा 6 साल की। सही जवाब है, माशाल्लाह। हमारे नबी के अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो हमारे नबी की कितनी उम्र थी? 6 साल की उम्र में ना अब्बू है ना अम्मी है हमारे नबी को। देखो उसके बाद हजरत आमिना के इंतकाल के बाद नबी अलैहिस्सलाम की किसने परवरिश की? इकरा, खड़े रहकर। चाचा जान ने? नहीं, आपका जवाब गलत। असद, हाँ चाचा दोनों ने बोले ना, अब भी तुम बोलो। शाबाश, इनका जवाब सही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। अरे तुमको मालूम है कि नहीं कुछ सवाल के जवाब ना? लेकिन याद होना जरूरी है सबको ये, ठीक है ना? किसने परवरिश की थी? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसने परवरिश की? मालूम क्या? चाचा ने करे, लेकिन कौन से चाचा ने? मोहसिन मालूम? कौन से चाचा ने? मालूम है किसी को? हाँ चाचा ने करे, लेकिन कौन से? हाँ चाचा अबू तालिब, सही जवाब है। चाचा अबू तालिब, इन्होंने क्या करे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या किए थे? परवरिश किए थे। ये आपके 10 सवाल हो गए, ठीक है ना? उसके बाद 11वां सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? और उसमें से आपको 5 नाम बताना है बस। बोलते क्या? कितनी बीवियां थी वो बोलो। 11 बीवियां थी, माशाल्लाह 11 बीवियां थी, ये तो सबको मालूम। उसमें से किसी 5 का नाम बता सकता कोई? ये सवाल रहेगा ऐसा। हमारे नबी को कितनी बीवियां थी, उसमें से 5 के क्या कीजिए, नाम बताइए। कोई बता सकता है क्या? जल्दी बोलो, खड़े रहो, बातें मत करो। तुम बोल रहे क्या? अशरफ आओ, इधर आओ ना, सुनो। हजरत आयशा, हाँ हजरत जैनब, हजरत आयशा, हजरत जैनब, हजरत आमिना। अम्मी का नाम है। ये सीधा लाइन से बढ़ के बता दे। हाँ खड़े रहो, बताओ 5 नाम। हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत कुलसुम, हजरत कुलसुम नहीं है, हजरत आयशा, हजरत खदीजा और बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बहुत आसान है। नहीं यार, कोई बोलेगा?
चलो मैं एक बार सुना देता, लेकिन बच्चों याद रखो। हाँ, हुज़ैफ सीधा बैठो। मैं एक बार सुना देता नाम। हजरत खदीजा, अकरम सीधा बैठो, बात मत करो। हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत जैनब, हजरत उम्मे सलमा। हजरत जैनब 2 है, हजरत जुवैरिया, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया और हजरत मैमूना। ये कितने हैं? 11 नाम है। इसमें से किसी 5 के नाम पक्के याद करने के आपको, ठीक है? पूरे याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात। चलो सवाल नंबर 12। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी? कितने लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी? हाँ, 4 लड़कियां थी और 3 लड़के। माशाल्लाह। कितने थे औलाद? 4 लड़के और 3 लड़के। माशाल्लाह, 4 लड़कियां और 3 लड़के। नाम बता सकता कोई? खड़े रह जाओ। अशरफ इधर आओ, आ जाओ। के नाम है हाँ, रुको। 3 लड़कों के नाम। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु। माशाल्लाह, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हुम। 4 लड़कियां। 4 लड़कियां, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत जैनब, हजरत फातिमा। माशाल्लाह, इन्होंने सही जवाब दिए। चलो बैठ जाओ। हाँ, हजरत रुकैया, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत बोलो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है? नंबर 13। जल्दी जल्दी ले रहे हम, हाँ? समझे ना? तुमको ज़ेरॉक्स दे देंगे इसका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले किस गार में इबादत किया करते थे? हमारे नबी को अभी नबूवत नहीं मिली थी, लेकिन एक गार में, गार मतलब पहाड़, पहाड़ के अंदर गुफा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? इबादत करते थे। हाँ, गारे हीरा। माशाल्लाह, गारे हीरा में। कौन से गार में? गारे हीरा में हमारे नबी क्या करते थे? इबादत करते थे। वीडियो हो रहा ना बराबर? कितने मिनट का हुआ? 40। जब हुजूर, चलो आगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपकी कितनी उम्र थी? लड़कों में है कोई? क्या खाली झंडू बाम जैसा बैठे? क्या है? अगले इतवार तक पक्के याद होना, समझे ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब, तुम भी दोनों बैठो, खाली भजिए तलते। हाँ आयशा, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपकी कितनी उम्र थी? 40 साल। माशाल्लाह, सही जवाब है। कितनी उम्र थी? 40 साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस महीने में नबूवत मिली? कौन सा महीना था? अपने उर्दू का कौन सा महीना था? नजदीक आओ इधर। हाँ बोलो अशरफ। रमजान मुबारक। माशाल्लाह, कौन सा महीना था? रमजानुल मुबारक, ठीक है, सही जवाब है। कौन से महीने में नबूवत मिली? चलो, सबसे पहले कौन सी वही नाजिल हुई? हाँ, कुरान पाक में से सबसे पहले कौन सी आयतें, कौन सी वही नाजिल हुई? हाँ, खड़े रह के जवाब देने का। हाँ, इकरा बिस्मि रब्बिकल। हाँ, सही जवाब है इनका। सूरह अलक की 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें सबसे पहले कुरान में क्या हुई थी? नाजिल हुई थी। ये शॉर्ट वीडियो पहले बनाने वाला है ना? किसने जवाब दिया था? रेहान ने जवाब दिए थे। चलो इसके आगे चलो जल्दी जल्दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसकी शक्ल में आते थे? एक सहाबी है, उनकी शक्ल में आते थे। है किसी को मालूम? नहीं है। चलो सुनो नाम। हजरत देहयाए कल्बी, हजरत देहयाए कल्बी। ये सवाल मैं तुमको पढ़ के सुना रहा, बाद में बताने वाला नहीं, मैं जेरोक्स दे दूंगा मैं, इसलिए गौर से सुनो। किसकी, हिंदी में भी लिखे ना, किसकी शक्ल में आते थे? हजरत देहयाए कल्बी, इनकी शक्ल में आते थे, ठीक है? सहाबा किराम ने सबसे पहले किस मुल्क की तरफ हिजरत की?
है मालूम? हिजरत करे थे जब सहाबा किराम को, जब कुफार मक्का यानी मुसलमानों को गैर मुस्लिम मक्का में इबादत नहीं करने दे रहे थे, सता रहे थे, मार रहे थे और तरह तरह की तकालीफ दे रहे थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत करे थे और सहाबा ने भी हिजरत करे थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सहाबा ने मुल्के हबशा, कौन सा बोलो? हबशा, हबशा की तरफ क्या करे थे? बोलो, हिजरत। क्या करे थे? हिजरत बोले तो एक शहर से दूसरे शहर को जाना, इसको क्या बोलते? हिजरत बोलते। समझ में आ रहा? उसके बाद मेराज किसे कहते हैं? मेराज मालूम? मेराज किसे कहते हैं? नहीं मालूम? सुनो, चलो सुनो जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुकद्दस और वहां से सातवें आसमान और सिदरतुल मुंतहा पर जो तशरीफ ले गए, उस वाक़िये को क्या बोलते? मेराज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कहाँ गए? बैतुल मक़दिस। वहां से फिर सातों आसमान का जो सफर किया, अल्लाह का दीदार किया, जन्नत का जहन्नम का जो दीदार किया, उस वाक़िये को क्या बोलते? मेराज। क्या बोलते? मेराज। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, थोड़े रह गया। चलो नंबर 20, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सवारी पर मेराज फरमाई, उस सवारी का क्या नाम है? तंजीला। बुर्राक सही जवाब है इनका। उनका वीडियो लो, बहुत आराम से बैठे हलते हो। तो हमारे नबी ने जिस सवारी पर सफर किया मेराज का, क्या नाम है उसका? बुर्राक। ठीक है ना? बुर्राक। घोड़े के जैसा वो, घोड़े के जैसी क्या थी वो? सवारी थी। बहुत स्पीड थी वो सवारी की। थोड़ा आगे आओ नहीं तो। चलो ए जल्दी जल्दी सुनो। ए कुर्सी लाओ करम यहाँ पे, जल्दी लाओ। सुनो आगे चलो। जब हुजूर, इधर सुनो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो अपने बिस्तर पर किसको सोने का हुक्म दिया? हमारे नबी, खड़खड़ न करो, बैठो जल्दी से, सीधा लो। सुनो इधर मोहसिन, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आने का इरादा किया तो एक सहाबी को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और उनसे कहा कि मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, वो उनको वापस कर दो और सुबह में तुम भी कहाँ जाना? मदीना आ जाना। तो वो कौन से सहाबी है? हाँ आयशा, खड़े हो जाओ। हजरत अली सही जवाब है। हजरत अली जो हमारे नबी के कौन है? चचाजाद भाई भी है और दामाद भी है। हमारे नबी के चचाजाद भाई भी है और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कौन है? शौहर भी है। ठीक है, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर कितने दिन गारे सौर में रहे? कितने दिन? हाँ, खड़े रह बोलो, सही जवाब है। बोले इन्होंने आप 3 दिन। हाँ, हमारे नबी और हजरत अबू बकर जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे तो गार में कितने दिन रहे थे? 3 दिन। कौन सी गार है वो? गारे सौर। कौन सी है? गारे सौर। 2 गारों का, 2 गुफाओं का, 2 गारों का जिक्र आता ज्यादा। एक गारे हिरा जहां पे अल्लाह के रसूल क्या करते थे? इबादत करते थे। और एक गारे सौर जहां पर 3 दिन हमारे नबी और हजरत अबू बकर है ना छुपे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी, थोड़े रह गए। गारे सौर से मदीना की तरफ हिजरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन था? मैं नाम सुना देता। जब हिजरत करके जा रहे थे गारे सौर से मदीना की तरफ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत आमिर इब्ने फुहैरा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित, ये नाम याद करने के आपको। हाँ, ये 3-4 क्या कर रहे थे? मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। हिजरत के दौरान किसने हुजूर का पीछा किया था? 100 ऊंटनियों की। अरे ये सवाल था आपको जवाब मिल गया आप। तो हिजरत के दौरान जब हमारे नबी मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो एक शख्स ने हमारे नबी का पीछा किया था।
क्यों पीछा किया था? मक्का वालों ने इनाम रखा था। क्या इनाम था वो? 100 ऊँटनियां। ये अगला सवाल था कि कुरैश ने हुजूर को और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ने पर कितनी ऊँटनियों का इनाम रखा था? 100 ऊँटनियों का। तो वो 100 ऊँटनियां पाने के वास्ते किसने हमारे नबी का पीछा किया? नाम सुनो, सुराका इब्ने मालिक। क्या नाम है? सुराका इब्ने मालिक। बाद में ये क्या हो गए थे? मुसलमान हो गए थे। ठीक है, ये 26 सवाल हो गए। 27वां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से पहले मदीना का क्या नाम था? मदीने का पहले दूसरा नाम था। मालूम किसी को? मदीने का पहले दूसरा नाम था। हमारे नबी जब मदीना में गए तो पहले उसका कुछ और नाम था, बाद में हमारे नबी ने क्या नाम रखे उसका? मदीना रखे। किसी को मालूम? सुनो, यसरब। क्या नाम है? यसरब। यसरब नाम था। उसके बाद हिजरत के वक्त नबी अलैहि सलाम की ऊँटनी किसके घर के सामने बैठी? बोलो। माशाल्लाह, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने बैठी। तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग का क्या नाम है? इस्लाम में सबसे पहली कौन सी जंग हुई? मालूम किसी को? जंगे बोलो। शब्बाश। जंगे बदर। कौन सी जंग? जंगे बदर। सबसे पहले जंगे बदर में कितने सहाबा, कितने मुजाहिदीन थे? बोलो शब्बीर। 313। शब्बाश। कितने थे? 313 सहाबा मुसलमान मुजाहिदीन। कितने थे? 313। चलो हो गए, आप थोड़े से रह गए, 10 रह गए खाली, जल्दी ले लेंगे। कितने मिनट हो गए? 21 चलो, हाँ चलो बस। नंबर 31, जंगे बदर कितने हिजरी में हुई? हिजरी सुनो किसको बोलते? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जब जा रहे थे तो वहां से हिजरी साल क्या हो गया? शुरू हो गया। तो मक्का से जब निकले थे हमारे नबी, मदीना में आए, तो मदीना में आने के बाद कितने साल के बाद जंगे बदर हुई? कितने साल के बाद हुई? कितने हिजरी में हुई? बोलो। नहीं मालूम? सुनो, 2 हिजरी में। कितने हिजरी में हुई? हिजरी साल किसको बोलते? इरशाद। अभी बोला ना मैंने, मक्का से मदीना जो हमारे नबी आए सफर करके, हाँ, तो मदीना में जब आए तो वहां से हिजरी साल शुरू हो गया। तो कितने हिजरी में गज़वा बद्र हुआ? 2 हिजरी में, यानी मदीना आने के बाद 2 साल के बाद। ठीक है ना, याद रखो ना मोटे मोटे चीजें। गज़वा ओहद, जंगे बदर हो गया। अब उसके बाद जंगे ओहद, गज़वा ओहद कितने हिजरी में हुआ? 3 हिजरी में। सही जवाब। जब बदर हुआ तो उसके 1 साल के बाद कौन सा हुआ? ओहद। ठीक है ना, 3 हिजरी में। लाइबा, हिजरी किसको बोलते? हिजरी। तुम्हारे समझ में ना आना ना, तुम बात मत करो आपस में, सीधा लो। मक्का से, हाँ, मक्का से मदीना जब हमारे नबी गए तो मदीना में आने के बाद से जो साल शुरू होता उसको क्या बोलते? हिजरी बोलते। ठीक है ना, बैठ जाओ। चलो, जंगे ओहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? मालूम? बोलो। नहीं, सिर्फ 700। कितने थे? 700 मुसलमान थे ओहद की लड़ाई में। और उसमें से ओहद की लड़ाई में शहीद कितने हो गए? 70 सहाबा क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 70 सहाबा। कौन से गज़वे में? गज़वाए ओहद, गज़वाए जंगे ओहद में 70 मुसलमान क्या हो गए? शहीद हो गए। 5 रह गए। फतेह मक्का किस साल में हुआ? मक्का फतह हुआ, यानी हमारे नबी मक्का छोड़कर कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे, क्योंकि मक्का में इबादत नहीं करने दे रहे थे, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे थे, इसलिए वहां पे गुंडागिरी कर रहे थे लोग। तो हमारे नबी मदीना से फिर मक्का आए और मक्का को आबाद किया, यानी मुसलमानों की हुकूमत आ गई। उसे कहते हैं फतेह मक्का। तो ये कितने साल में हुआ? कितने सन में हुआ? बोलो। नहीं मालूम? 8 हिजरी में। कितने? 8 हिजरी में, यानी मदीना आने के कितने साल बाद? 8। मदीना आने के
8 साल बाद। बच्चों ये तुमको याद रहना, इसके वास्ते ये मैं प्रैक्टिकल में ले रहा, समझे ना। सुनो, इधर सुनो, कितने साल के बाद? 8 साल के बाद मक्का क्या हुआ? फतह हुआ। सन 8 हिजरी में। कितने? हज फर्ज होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने किस सन हिजरी में पहला और आखिरी हज किया? सबसे पहले याद रखो, हमारे नबी ने सिर्फ एक हज किया, और वो कितने हिजरी में किया? वो 10 हिजरी में। 10 हिजरी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हज किया। यानी मदीना जाने के बाद कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। और उसी के यानी हमारे नबी ने जब हज किया, वो हमारे नबी का पहला हज था और क्या था? आखिरी हज था। उसके कुछ महीनों के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। सुनो आप, हुजूर की वफात किस दिन हुई? बहुत आसान, सुनो जवाब। पीर का दिन और 12 रबीउल अव्वल। पैदाइश भी उसी दिन, पीर का दिन और 12 रबीउल अव्वल, और वफात का दिन भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल। याद रहेंगे ना। चलो उसके बाद, हुजूर की कब्र किसने खोदी? कब्र किसने खोदी? हजरत अबू तलहा। किसने? हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ने। सेकंड लास्ट सवाल, हुजूर की वफात के वक्त कितनी उम्र थी? हमारे नबी की कुल कितनी उम्र थी? अरे कितना आसान है ये। हाँ, कितने साल? 63 साल। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? वफात के वक्त 63 साल हमारे नबी की उम्र थी। इतना आसान सवाल। आखिरी सवाल, हुजूर की तदफीन किसके हुजरे में यानी किसके घर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाई गई? मालूम है आयशा? बोलो। हजरत आयशा। आयशा को नहीं मालूम कि किसके हुजरे में और किसके घर में बनाई गई? कौन है वो? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बनाई गई? कब्र बनाई गई। सुनो इधर लो, ए सुनो इधर, एक बात सुनो, आप वीडियो चालू है, खामोश बैठो। तो ये आपके 40 सवाल और उसके जवाब थे जो हमने। सीधा बैठो, मार मत खाओ, वीडियो चालू है, मार खाएंगे ना तो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से 40 सवाल और जवाब आपको हमने बताए, ठीक है ना। ये इसके ज़ेरॉक्स आपको सबको दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपका काम है वो अच्छी तरह से याद करना, ठीक है ना। ये वीडियो भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ये वीडियो में भी देखो, और इस तरह से क्या करो, सवाल जवाब आपस में एक दूसरे को पूछेंगे तो उससे क्या होता? पक्का याद होता, ठीक है। इधर लो आप। मोहतरम दोस्तों, ये मुख्तसर तौर पे छोटे बच्चों के लिए 40 सवाल और उसके जवाब हमने आपके सामने और इनके सामने पेश किए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सीरत मुस्तफ़ा और सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अच्छी तरह से पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ओके कर दो।